Once again, very good morning and welcome back to the channel. Today we are going to study second poem, that is Wind, for the students of class ninth. This is a poem which has been taken from Behive you can say. Now let us go through this poem. The wind blows strongly. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Okay, here the poet write about wind. Wind is strong and causes lot of destruction. It destroys lot of homes, lot of residentials, and many more things. Wind is natural. We human being can't stop it. It blows fastly and strongly, which hurts a lots of property of human being. It causes a lot of destruction. So this poem is about wind, hawa. How can we make friends with it? And we people need to be friend with wind so that it will not hurt and destroy, it will not cause destruction in our atmosphere. So let us go through the poem line by line, and everybody would be paying attention and watching until the end. Wind. Here the poet accosts, calls the wind. Come softly. He is calling to come softly, gently. Do not break the shutters of the windows. The poet requests to wind to come softly and not to break the shutters, doors as well as windows of houses. Means, O wind, come softly, gently. दरवाज़ों को, खिड़कियों को मत तोड़ो. Don't scatter the papers. And scatter means to blow with air. I mean, papers are blowing in the air, scattering here and there. इधर उधर बिखरे पड़े हैं. I mean, पेपर को मत बिखराओ. Don't throw down the books on the shelf. And do not cause the books falling on the shelf. These all are destruction. किताबों को उड़ेल देती हो. There, look what you did. देखो तुमने क्या किया है. It is not justified. जो तुमने किया है, the destruction that you causes is not justified. ये उचित नहीं है. This is not negotiable. You threw them all down. तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया है, और ऐसा बिल्कुल सही नहीं है. You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया है. You brought rain again, and due to excess air in the atmosphere, it is raining. बारिश भी होने लगी है. तो ये सारा कुछ डिस्ट्रक्शन ही तो है. I mean, विंड के आने से क्या क्या होता है. What happens when wind blows strongly? We all are Indians. हम सभी भारतीय हैं. And there are 4 types of climate in our India. हमारे भारत में 4 तरह की क्लाइमेट होती है. During monsoon, wind blows
स्ट्रांगली, बड़ी तेज़ी से और मजबूती से, फर्मली हवा बहती है. एंड व्हेन इट ब्लोज स्ट्रांगली, इट फ्लोट्स, it causes floating clouds in the sky and it rains. और फिर बारिश भी होती है. समटाइम्स इट rains heavily, बहुत तेज़ी से बारिश होती है. इट causes डिस्ट्रक्शन, ये नुकसान पहुंचाता है. तो ये सारा कुछ किसकी वजह से है भाई? विंड की वजह से है. ठीक है, ये सारा कुछ विंड की वजह से है. अब आगे देखते हैं. You are very clever at poking fun at weaklings. The poet. The poet says, using satire, that you are so clever. तुम बड़ी चालाक हो. Making fun, poking fun at weaklings. Here the meaning of weaklings is weak people. Okay. वीक मीन्स क्या होता है? कमज़ोर होता है. हु डू नॉट सफ़र और हु हैज़ नो इफोर्ट और पोटेंशियल कैपेबिलिटी, जो योग्य नहीं होते हैं उस चीज़ को फेशअप करने के, उनको वीकलिंग्स बोला जाता है. मतलब तुम कमज़ोर और गरीब लोगों का मजाक उड़ाने में बड़ी चालाक हो. हवा को ऐसा अकॉस्ट किया जा रहा है. फ्रैल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रैल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम घरों को तोड़ती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को चूर चूर कर देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स एंड क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स. मीन्स यू क्रम्बल एवरीथिंग लाइक हाउसेस, राफ्टर, wood, bodies and lives. Means you causes a lots of destruction in atmosphere. Now, the wind got winnows and crosses them all. The wind god. In our country, India, wind is known as God. I mean, there is a god of wind who controls and manages, who operates and functions the air. हवा को मैनेज या फंक्शनाइज करने का काम जो होता है वो गॉड का होता है. अब गॉड कौन है भाई? हवा. आई मीन हमारे भारत में एक ये विधा है. इट इज़ अ रिचुअल और ट्रेडिशन इन आवर कंट्री इंडिया दैट वी कंसिडर गॉड फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए भगवान का एक कंसिडरेशन होता है कि हवा के लिए भी एक भगवान है. पवन देवता उनको बोलते हैं. दे आर नोन एज पवन देवता. ओके. तो ऐसा बताया जा रहा है द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस देम ऑल. ये जो भगवान होते हैं, पवन देवता होते हैं, ये सब कुछ उड़ाते हैं. आई मीन ही ब्लोज एवरीथिंग एंड क्रॉसेस, तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, स्कैटर करना. ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम. ही, गॉड ऑफ विंड, विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम. मीन्स ही विल नेवर फॉलो यू. वो ऐसा नहीं करेंगे जो तुम चाहोगे. आई मीन यहाँ पे यू रिफ़र करता है हम सभी रीडर्स को और सारे लोगों को. मतलब होगा वही जो भगवान चाहेंगे. ओके. दैट वुड हैपन व्हाट गॉड वांट्स. जो भगवान चाहते हैं वही होगा. अब क्या है? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स. अब पोएट रिकमेंडेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है. इसलिए आइए
लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, चलिए मजबूत घर बनाते हैं। भाई मजबूत घर होगा तो हवा से गिरेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हवा घरों को गिरा देती है, इसका कारण ये है कि घर जो है वो मजबूत नहीं है। ओके, और अगर हमें डिस्ट्रक्शन से बचना है काज ऑफ फास्ट एंड ब्लोइंग अ स्ट्रॉन्ग एयर, वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। मजबूत घर बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, हट्स जो होती हैं, झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं इस तरह की, ठीक है, ऐसे घर को हवा आएगी इधर से जो है, अब हवा का जो है पूरा झोंका इधर से आ रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको तो उड़ा ले जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा, टूट फट जाएगा ऐसे। तो इसलिए पोएट रिकमेंडेशन दे रहा है कि आइए स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, आई मीन रूफ बनाते हैं, ठीक है, छत वाला घर जो कंक्रीट का होता है, ऐसा मजबूत सा घर बनाएंगे जिस पे रूफ होगी, चारों तरफ से फेंस होगी। तो ऐसे घर जो है होते हैं कंक्रीट सेल के, वो मजबूत होते हैं और उनको हवा नहीं गिरा सकती। नाउ प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम अभ्यास करते हैं, लेट अस प्रैक्टिस टू फॉर्म टू मेक बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग द बॉडी, और शरीर को भी बोल्ड और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और जो हार्ट है उसको जो है स्टीड फास्ट का मतलब संतुलन में लाए रखें, बैलेंस में। स्टीड का मतलब होता है स्थायी और फास्ट का मतलब होता है तेज़, ठीक है। ऑक्सीमोरोन है यहाँ पे, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास, जहाँ पे दो अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ जो है एक ऑब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरोन होता है, ठीक है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे जो स्टीड और फास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टीड और फास्ट का मतलब, स्टीड का मतलब स्थायी होता है और फास्ट का मतलब तेज़ होता है, ठीक है, दोनों की बात है। तो समवेयर इट इज़ टॉकिंग अबाउट द बैलेंस, ठीक है, संतुलन के बारे में बात कर रहा है। नाउ डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा करने से हम हवा को दोस्त बना सकते हैं। भाई दोस्त बनाने का मतलब क्या है, जो हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आई मीन नुकसान नहीं करेगा, वो हमारा फ्रेंड ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है, इट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब हम मजबूत घर बना लेंगे तो कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रांग हो इंटरनली एंड फिजिकली एज वेल एज मेंटली, सो नोबडी कुड हर्ट अस, तो हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। और अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी, एनीबडी कैन पोक फन एट अस, तो कोई भी हमारा मजाक उड़ा सकता है। सो लेट अस बी बोल्ड एंड स्ट्रांग, चलिए मजबूत बनते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं ताकि हमारा कोई नुकसान न पहुंचा सके। और ऐसा करने से जब हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इफ़ नोबडी वुड हर्ट अस, वी वुड बी फ्रैंक एंड गुड फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी वुड बी गुड फॉर अस, तो सारे लोग हमारे लिए अच्छे होंगे, सारे लोग फ्रेंड होंगे, क्योंकि एक दूसरे को कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। नाउ द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है, ब्लोज आउट का मतलब बुझा देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लोज आउट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टर्न ऑफ, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब होता है बुझा देना। जैसा कि आप लैंप, जलता हुआ लैंप देखते होंगे, उसको फूंक मारकर बुझा देना, हवा जब आती है तो उसको फूंक मारकर बुझा देती है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में जो है पोएट बात कर रहे हैं। नाउ वी आर हियर, he makes strong fires roar and flourish, he makes, he refers to wind। यहाँ पे एक पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच ध्यान देंगे, ठीक है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है भाई,
पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। ठीक है। अब मानवीकरण क्या होता है? जब इंसानों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, व्हेन कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू अदर्स, आई मीन एनीथिंग एल्स, इट इज़ नोन एज पर्सनिफिकेशन। ओके। तो हम सभी जानते हैं भाई कि ही जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही मेक्स, ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जब भी जानवरों या किसी और चीज़ के लिए ही का यूज़ होता है तो समझ लीजिए वहाँ पर्सनिफिकेशन है। नाउ ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स। Here we are talking about he makes a strong fire, roar and flourish. Okay. हवा जो होती है वो बहुत ही मजबूत फायर्स की तरह रोर करती है, गुर्राती है। His friendship is good, we prize him every day. उसकी जो फ्रेंडशिप है, जो उसका दोस्ताना है, इट्स अ फ्रैंकनेस ऑफ एयर इज़ वेरी गुड ऑफ विद ह्यूमन, एंड वी प्राइज हिम एवरी डे। और हम उसकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब भी हम कमज़ोर होंगे, एक मोरल क्या है? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम? वेन एवर वी आर वीक, जब भी हम कमज़ोर हैं, सो एनी बडी आर एनी थिंग कैन ब्लो अस, हमको कोई भी चीज़ उड़ा सकती है। प्रियंका मसवा सर मेक इट ऑफ। Okay, so this poem is finished. Okay, I'll not be online anymore. Keep learning and practicing. Bye bye.